آج موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے قرآن کے دفاع کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ آپ ساتھی میڈیا سے ٹچ ہیں، آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ قربانی کے پہلے روز سویڈن میں مسلمانوں کی عبادت گاہ کے سامنے قرآن مجید کو یا قرآن مجید کے چند ورقوں کو جلایا گیا اور مسلمانان دنیا کے دلوں کو زخمی کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے، پچھلے جمعے پر میں نے بات کرنی تھی، 100% ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن اللہ مجھے معاف کرے کہ میں بھول گیا اور موقع کی مناسبت سے جو موضوع چل رہا تھا ذہن اس طرف گیا اور اس موضوع پر میں بات کرنا بھول گیا۔ تو اس کے لیے میں نے آج کا پورا جمعہ مختص کر دیا ہے کہ آج ہم انشاءاللہ قرآن کے دفاع اور قرآن کی حفاظت کے حوالے سے چند باتیں کریں گے تاکہ مسلمانان دنیا کے دل میں قرآن کی قدر اور اہمیت پیدا ہو۔ بھائیو، آپ نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انجیل شریف کے ورقوں کو جلایا گیا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تورات کے ورقوں کو جلایا گیا، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وید جو ہندوؤں کی کتاب ہے اس کو جلایا گیا، یا کوئی سکھوں کا یا کسی مذہب کی مذہبی کتاب کو جلایا گیا۔ جب بھی دشمن وار کرتا ہے، جب بھی دشمن حملہ کرتا ہے تو اسلام کی چیزوں پر، اسلام کے شعائر پر، اسلام کی مین معتبر چیزیں یعنی رسول اللہ کی ذات، اللہ کا قرآن، نماز شریعت کے جتنے بھی مزید چیزیں ہیں جو شعائر اللہ ہے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائیو، پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہمارے اسلام کی طرف تمام تیروں کا رخ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہمارا مذہب ہی سچا اور حق مذہب ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ یاد رکھے۔ دوسری بات کہ اب جو موقع کی مناسبت سے کہ قرآن کے حوالے سے لوگوں نے زیادتی کی ہے اور ظلم کیا ہے اور اللہ کے قرآن کے اوراق کو جلایا گیا ہے، بھائیو یہ آج سے نہیں ہے، یہ آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ کا قرآن اترا ہے دشمن اللہ کے قرآن کی مخالفت ہر اعتبار سے کرتا رہا ہے۔ دشمن نے ہر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور موقع کی مناسبت سے اس نے اللہ کے قرآن کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن میں ان جیسی آیات بہت سارے مقامات پر موجود ہیں کہ کفار کبھی کیا مطالبہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی کہ او بدل ہو، قرآن کو تبدیل کر دو، کبھی کہتے ہیں مسئلہ قرآن کو تبدیل کر دو، کبھی یہ کہتے ہیں ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، یہ تو اپنی طرف سے لکھ لاتا ہے، کبھی کون سا، یعنی شروع سے لے کر آج تک یہ قرآن کی مخالفت ہوتی رہی ہے۔ بلکہ اللہ کا قرآن کھول کر یہ بات بتا رہا ہے، توجہ سے ذرا سنیے گا، میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سورت کا نام سورت الانعام، 7واں پارہ ہے سورت الانعام اور آیت نمبر میرے بھائیو 33 ہے۔ اللہ نے فرمایا قد نعلم، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، انہو لیحزنک الذی یقولون، یہ جو کافر میرا پیغمبر تمہیں دکھ دیتے ہیں، آپ بڑے دکھیاں ہیں، آپ کا دل بڑا زخمی ہے، آپ روتے ہیں، آپ بڑے پریشان ہیں۔ قد نعلم، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، آپ کا رونا بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں، ان کا رونا
बुलाना भी हम देखते रहते हैं, लेकिन मेरा पैगंबर, मैं अल्लाह पाक आपको बात बतलाने लगा हूँ। वो कौन सी बात है? फ़इन्नहुम ला युकज़्ज़िबूनका, ऐ मेरा पैगंबर मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। ये मक्का के लोग, ये दुनिया के दुश्मनाने इस्लाम तेरी जात के दुश्मन नहीं है, तेरी जात के साथ इनको इख्तिलाफ नहीं है। अगर तेरे साथ इख्तिलाफ होता 40 साल नबुव्वत से पहले भी तो तूने जिंदगी गुजारी है, तेरे साथ उस वक्त भी ज़्यादतियां करते, लेकिन ना मेरा पैगंबर ला युकज़्ज़िबूनका, वो तेरे मुखालिफ नहीं है, तुझे नहीं झुठलाते, बल्कि उनको तकलीफ क्या है, उनका मसला क्या है, आपको सताते क्यों हैं, आपके सहाबा को आपके सामने तकलीफ और अज़ियत क्यों देते हैं, आपके सहाबा और साहबियात का कत्ले आम क्यों करते हैं। मेरा पैगंबर मैं तुम्हें बताऊं, वलाकिन्न ज़ालिमीना बिआयातिल्लाहि यजहदून, मेरा पैगंबर इनकी दुश्मनी तेरे साथ नहीं, अल्लाह के कुरान के साथ है। 40 साल कुरान उतरने से पहले आपने गुजारे पर कोई मुखालिफ नहीं है, ना मक्का की धरती पर ना इर्दा गिर्द मसाफात में, लेकिन मेरा पैगंबर जो ही आपने नबुव्वत का ऐलान करके अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू किया तो तेरे मुखालिफ होते गए। असल वजह यही है कि ये तेरे दुश्मन नहीं है, अल्लाह के कुरान के दुश्मन है। ये हवाला याद रखिएगा, आयत नंबर 33, सूरत का नाम सूरतुल अनाम। बात ये समझ आई, इब्तिदा से लेकर आज तक जितने भी दुश्मनान इस्लाम है वो अल्लाह के कुरान के दुश्मन है, अल्लाह के कुरान के दुश्मन है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सूरत का नाम सूरतुल हिज्र, आयत नंबर 9 है मेरे भाइयों। अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ए मेरा पैगंबर इस किताब को, इस जिक्र को हम ही उतारने वाले हैं, हमने उतारा है मेरा पैगंबर। और याद रख, इससे पहली किताबें तौरात है, इंजील है, ज़बूर है या दीगर सहीफे और आसमानी किताबें हैं, वो सारी की सारी हमने नाजिल की है। लेकिन मेरा पैगंबर साबका किताबों को नाजिल करने के बाद मैं अल्लाह ने क्या किया, मौलवियों के जिम्मे लगाया, इन किताबों की हिफाजत करो। तौरात की हिफाजत उनके मौलवियों के जिम्मे कर दी, इंजील की हिफाजत उनके मौलवियों के जिम्मे कर दी, आसमानी किताबों की हिफाजत उनके मौलवियों के जिम्मे कर दी। अल्लाह का कुरान है, 6 पारा है, अल्लाह पाक ने फरमाया बिमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह, फरमाया इन्ना अनज़लना तौराता फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यूना अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानियूना वल्अहबार बिमस्तहफिज़ू मिन किताबिल्लाह व कानू अलैहि शुहदा। साबका आसमानी किताबें तौरात इंजील वगैरह वगैरह उनकी हिफाजत का जिम्मा मौलवियों पे हमने रख दिया। नतीजा ये निकला, मौलवियों ने अपनी इज्जत के लिए को अल्लाह की किताबों में तब्दीलियां कर दी, अपने पैसे और माल बनाने के लिए अल्लाह की किताबों में तब्दीलियां और तरमीमें कर दी, अपनी पोस्टें बाकी रखने के लिए अल्लाह की किताबों में तहरीफी और तब्दीलियां कर दी। मेरा पैगंबर जब आया कुरान का नंबर तो कुरान के लिए हमने ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना
नज़्ज़लना ज़िक्रा, कुरान हम ही उतारने वाले हैं, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम मौलवियों की इसकी जिम्मेदारी नहीं देते, पीरों को इसकी जिम्मेदारी नहीं देते, गद्दी नशीनों को इसकी जिम्मेदारी नहीं देते, हम 100% देते, बाहर कोई नहीं है। हाँ, इसकी जिम्मेदारी के लिए मैं अल्लाह खुद मैदान में आ रहा हूँ और कह रहा हूँ व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान उतारा भी मैंने है और क़यामत तक इसकी हिफाजत भी मैं अल्लाह आप करूँगा। अब दुश्मनान इस्लाम को दीगर किताबों को जलाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो किताबें असल हालत में नहीं रही, जरूरत ही नहीं है। कुरान के खिलाफ उनके दिलों में बुग़्ज़ इसलिए है, उन्होंने 1000 कोशिशें की है कि कुरान के खिलाफ कोई अपनी तहरीक चलाएं, कुरान को मिटा दें। अल्लाह की कसम है, जो भी कुरान से आके टकराया वो खुद पाश हो गया। अल्लाह ने कुरान को क़यामत तक बाकी रखना है। ये बदमाश स्वीडन का जिसने प्रिमिटेड ये काम किया, इजाजत लेकर बाकायदा अपनी अदालत से ये काम किया है कि अल्लाह का कुरान जलाया है। अल्लाह की कसम है, आप जरा मीडिया को टच करते होंगे, आपको पता होगा। अब वो शोर मचाता फिर रहा है मेरी जान को खतरा है मेरी जान को खतरा है। ओ भाई, ये तो दुनिया है, दुनिया में तो चंद दिन जितनी तेरी जिंदगी है और लाइन तो जी लेगा। पता नहीं कोई अल्लाह पाक कोई आमिर चीमा जैसा, कोई गाजी इल्मुद्दीन जैसा बहादुर मुसलमान तेरे ऊपर मुसल्लत जरूर करेगा। हमारा ईमान है, हम अगर कमजोर मुसलमान हैं, आज हमारे बस में अगर नहीं है, आवाज उठाने के अलावा हाथ उठाना हमारे बस में नहीं है, यकीनन अल्लाह ताला कोई ऐसा दलेर और शुजा बंदा जिंदा उठाएगा जमीन से और अल्लाह ताला उस बदमाश का सर तन से जुदा कराएगा, उसके अल्लाह टुकड़े टुकड़े कराएगा। मेरा इस पर ईमान है। इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह। अल्लाह अपनी किताब का और अपने मोहम्मद जवान का बदला खुद लेता है अल्लाह ताला। बाकी रहा मसला आवाज उठाना और मुसलमानों के दिलों को बेदार करना, ये हमारा फर्ज है कि मुसलमानों थोड़ा जाग जाओ। आज हम कुरान को जलता हुआ आंखों से देखते हैं, मीडिया तो आंख है ना एक, आंखों से देखते हैं, पर अजीब अफसोस इस बात पर होता है भाइयों, इतना कुछ देखने के बावजूद क्या तेरी मेरी, तेरी तुझे और मुझे इतनी तौफीक हुई कि मैंने 2 नफल पढ़ के अल्लाह से माफी मांग ली, मौला हम बड़े कमजोर हैं, घटिया हैं, कमीने हैं, हमारे होते हुए तेरे कुरान को जलाया गया और मैं अपने कारोबार में मसरूफ हूँ, मैं अपनी दुकानदारी में मसरूफ हूँ, मुझे गैरत नहीं आई, मेरा ईमान नहीं जागा। क्या हमारी ये कैफियत हुई है? वे तौबा के 2 नफल ही पढ़ लेते कि मौला हमारी वजह से आज ये हो रहा है। मुसलमानों, अब भी बेदार नहीं होगे तो कब होगे? काफिर को जुर्रत नहीं है कि ईसाई की मजहबी किताब को जला सके। क्यों? वो अपनी किताब की प्रोटेक्शन जानते हैं, हिफाजत जानते हैं, करते हैं। यहूद अपनी किताब की हिफाजत करते हैं, गैर मुस्लिम मज़ाहिब जितने भी हैं वो अपनी अपनी मजहबी किताबों की हिफाजत करते हैं। मुसलमान कितनी हिफाजत करते हैं अपनी किताब की? कभी सोचा? भाइयों, अल्लाह की कसम है, मेरा ये जुमला दिल पे लिख के ले जाओ, वो कुरान को जलाने का मुजरिम है तो हम भी मुजरिम हैं। हम अगर कुरान से दूर न होते आज हमें ये दिन न देखना पड़ता, लेकिन आज हम इतने मर गए कि हमारा ज़मीर ही मुर्दा हो गया। हमें एहसास तक नहीं हुआ कि यार मेरी मजहबी किताब उसके साथ ये हशर हो रहा है और मुझे पता ही नहीं है। अल्लाह हम सबको बेदार फरमाए। दुआ किया करो यार, अल्लाह हमें बेदारी नसीब फरमाए। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत के जिम्मेदार भी हम हैं। तवज्जो से भाइयों,
جب سے اللہ پاک نے قرآن کو لکھا، توجہ سے میری بات سنیے گا، اللہ پاک نے اپنے قرآن کو جب لکھا اپنے حکم کے ساتھ، قرآن اس بات پر گواہ ہے، اللہ پاک نے سورۃ بروج کے اندر فرمایا انہو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور لوگوں میں نے قرآن کو لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، جہاں کسی انسان کی سماعت نہیں پہنچتی، جہاں کسی انسان کی عقل بھی نہیں پہنچتی، جہاں کسی انسان کی نظر بھی نہیں پہنچتی، میں اللہ نے قرآن کو لکھ کر محفوظ لوح محفوظ میں کر دیا۔ پھر وقت آیا جب میں نے قرآن کو اتارنا چاہا تو پھر میں نے کیا کیا، سب سے بڑے فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ روح الامین، قرآن اس بات پر شاہد ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ سورۃ شعراء ہے اور آیت نمبر 193 ہے۔ اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے لوح محفوظ میں قرآن کی حفاظت کی، پھر اتارتے ہوئے ہم نے سب سے بڑا طاقتور اور امانت دار فرشتے کا جبرائیل امین کا انتخاب کیا۔ آیت نمبر میرے بھائیو 193، سورت کا نام سورۃ شعراء ہے۔ اللہ نے فرمایا لوح محفوظ میں بھی محفوظ، پھر قرآن کو اتارتے ہوئے بڑے امانت دار ہاتھ میں ہم نے دیا، اس نے آ کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کا فرشتہ ہم نے چنا، وہ قرآن لوح محفوظ سے لے کر زمین پر آیا اور عام جگہ پر نہیں آیا، اعلیٰ قلب کا، میرا پیغمبر تیرے دل پر ہم نے قرآن اتارا، اور تیرا دل کوئی عام دل نہیں ہے، بلکہ اس کی قسمیں کھا کے میں کہہ رہا ہوں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اور میرا پیغمبر تیرا سینہ بھی کوئی عام سینہ نہیں ہے، ساری کی ساری کائنات کے دل ایک طرف رکھ لو، اللہ کی قسم ہے آمنہ کے لال کے دل کا اور سینے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ فرمایا ہم نے حفاظت کا ذمہ قرآن کا لیا، پہلے لکھا قرآن لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، اتارنے لگے سب سے بڑے فرشتے کے ہاتھ کے حوالے کیا، وہاں سے لے کر جب آیا سب سے اعلیٰ درجے کے انسان آمنہ کے لال کے دل پر اتارا۔ جب اتارنے لگے قرآن، توجہ کر ذرا توجہ، اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا کیسا کیسا بندوبست کیا ہے، ذرا غور کرتا جا، پھر دیکھ آج تیرے میرے گھر میں یہ پڑا ہوا ہے قرآن، تو اور میں اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ توجہ کر، فرمایا میرا پیغمبر اللہ، جب اللہ کے پاک پیغمبر پر قرآن اترنے لگا دل مبارک پر، جب وحی آ رہی تھی، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو فکر لاحق ہوئی کہ یار یہ نہ ہو کہ میں قرآن کی کوئی آیت بھول نہ جاؤں، کوئی مجھ سے رہ نہ جائے، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی جملہ مجھ سے رہ نہ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا، جبرائیل پڑھ رہا ہے، اللہ کی نبی نے بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تو حرک بھی لسانکا لتعجل بھی، اور میرا پاک پیغمبر اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیا کر، قرآن کے اندر جلدی نہ کیا کر، اور پریشان نہ ہو، تیرے دل میں آ رہا ہے کہ قرآن کا کوئی جملہ، کوئی آیت
वादा हो गया, इन्ना अलैना जमाउ व कुराना, तेरे दिल के अंदर कुरान को जमा करके महफूज कर देना मैं अल्लाह की अपनी जिम्मेदारी है। आप परेशान ना हो मेरा पैगंबर, ये बढ़िया हिफाजत नाल असा कुरान रखे आई। आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले का कुरान महफूज है, लेकिन अल्लाह ने ना आदम को दिया, ना नूह को दिया, ना खलीलुल्लाह को दिया, ना कलीमुल्लाह मूसा को दिया, ना ईसा रूहुल्लाह को दिया, दिया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया। ये अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे पैगंबर कुरान की हमने खुद हिफाजत की है। कई हजार साल, कई लाख साल गुजर गए, हम हिफाजत करते रहे। जब उतारने लगे आला दर्जे का फरिश्ता हमने चुना ताकि अमीन हाथों में महफूज जरिए से तेरे दिल तक पहुंच जाए। फिर तेरे दिल पर जब कुरान आ रहा है फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं। उस कुरान को तेरे दिल के अंदर जमा करके तुम्हें याद करा देना मैं अल्लाह का अपना काम है। अल्लाह अकबर। तवज्जो जी तवज्जो। कुरान याद भी अल्लाह आप चा कराया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी खुद करा दिया। उसके बाद फरमाया कि मेरा पैगंबर अब कुरान आ गया, दिल में महफूज हो गया। अब अगला मरहला था कुरान को महफूज करने का। क्या महफूज करने का मरहला ये था कि अल्लाह के कुरान के मानी और मफहूम और मतलब वगैरह ये भी तो सारी उम्मत तक पहुंच जाए। अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर कुरान दे मुहाफिज सापा ता इस जरिए दे नाल कुरान दी हिफाजत भी असा करनी है, उम्मत तक कुरान दे मफहूम ते माना ते मतलब भी पहुंचावना है, वो भी साडे जिम्मे आ गया। आयत अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। और लोगों सुन लो, हमने अपने नबी से फरमाया कुरान को तेरे दिल में महफूज करना भी हमारा जिम्मा है और कुरान के मतलब और मानी आपको समझा देना भी मैं अल्लाह के जिम्मे है। कोई शय अल्लाह बंदा दे वास छोड़ी नहीं। ठीक है, लिखे कुरान अपने को लोहे महफूज कीता है। उतारन लगे रूल अमीन का इंतखाब कीता है। जब उतरन लगा मुहम्मद अमीन दे दिल का इंतखाब कीता है। जब उतरन लगा ते दिल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उतरने लगा कुरान तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह तो हर एक भी लिसाना का, अपनी जबान हिलाने की भी तकलीफ ना कर मेरा पैगंबर। इस कुरान को हम आपके सीने में खुद जमा कर देंगे। जब जमा हो गया अब फरमाया मेरा पैगंबर इसका माना, इसका मतलब, इसकी तफसीर और तशरीह ये भी आपको समझा देना मैं अल्लाह के जिम्मे हो गया। अल्लाह केड़ियां हिफाजत कीतियां आप दिल च महफूज ही कीता और फिर उस तो बाद तर्जमा तशरीह तफसीर वगैरह तौज़ी ये सारिया चीज़ा अल्लाह दे नबी नू आप समझा देतियां। आगे देखो भाइयों, कुरान की हिफाजत के लिए तवज्जो भाई तवज्जो है सबकी। कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या क्या इंतजाम किए। तवज्जो, कुरान कहता है, यही सूरत का नाम सूरत शुआरा है। फरमाया बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। वही सूरह शुआरा आयत नंबर 93 पहले आपको सुनाई, 94 सुनाई नबी का दिल, अब 95 है, 195 नंबर आयत। फरमाया मेरा पैगंबर ये कुरान हमने अरबी जबान में नाजिल किया। अब जरा तवज्जो कर, एक बात समझाऊं, मुशाहिदा करो, तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, आपको यही बात नजर आएगी। कोई भी दुनिया की जबान है, दुनिया की कोई भी जबान
200 साल, मैक्सिमम 300 साल, 300 साल के बाद वो ज़बान अपनी असल हालत में नहीं रह सकती, तब्दील हो जाती है। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये हमारी जो उर्दू है लश्करी ज़बान जो मुगलिया दौर में शुरू हुई थी, यकीन करो आज से 60-70-100 साल पहले की जो कुतुब है वो आप जाके पढ़ो, आपको समझ ही नहीं आएगा, है यही उर्दू, समझ ही नहीं आएगा। बल्कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमहुल्लाह की वो जो मशहूर किताब है बहिश्ती ज़ेवर, बहिश्ती ज़ेवर की अब तस्हील बहिश्ती ज़ेवर लिखना पड़ गई। तस्हील बहिश्ती ज़ेवर, तस्हील साल से है यानी आसान करना, वो लिखना पड़ गई। क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि वो पुरानी उर्दू है, अब नए एडिशन लोगों को समझ नहीं आती। भाइयों, कोई भी ज़बान है वो 200 साल 300 साल के बाद उसमें बढ़िया चेंजेस और तब्दीलियां आ जाती हैं, उसकी असल बाकी नहीं रहती। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जिस ज़बान में नाजिल करना था, अल्लाह ने उस ज़बान की ऐसी हिफाजत की है। 1400 साल पहले जो अरबी थी आज भी वही अरबी है और क़यामत तक वही अरबी रहेगी। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहिब्बुल अरबा लिसलास, और लोगों, अरब लोगों से, अरबियों से, अहले अरब से 3 वजह से मोहब्बत किया करो। क्या फरमाया? 3 वजह से अहले अरब से मोहब्बत किया करो। क्यों? मैंने वो हवाले वगैरह लिख दिए हैं। फरमाया क्यों? इसलिए इन्नी अरबियुन, अरबियों से इसलिए मोहब्बत किया करो कि मैं मोहम्मद अरबी हूँ। हाँ, नबी की लज रखी करो यार, हमारे नबी का शहर है, हमारे नबी के इलाके के लोग हैं। ये नहीं भाई उम्रा करके आओ, इधर बैठो, आप ज़मज़म भी पिला रहे हो, खजूर भी दे, यार वो तो बड़े बेअदब लोग हैं यार, वो तो कुरान को सर के नीचे रख के जो है पड़े होते हैं, ये है वो है। उनके गिले शुरू, सुभान अल्लाह। उम्रा करने गया, हज करने गया, जेड़ियां करके आया, कमा के आया, लोड दियां सारियां गिले कर करके। मेरे नबी ने फरमाया अहिब्बुल अरब अलैहिस्सलास, लोगों, अरब लोगों से 3 वजह से मोहब्बत किया करो। पहली वजह, मैं मोहम्मद अरबी हूँ, मेरा लिहाज रखा करो, उनका ऐब देखो भी सही ना, उस पे पर्दा दे दो। क्यों? मैं यार इन्हां दी गिला करा, इन्हां दा ऐब बयान करा तो मेरे मोहम्मद दे इलाके दे लोग कि नहीं मेरे मोहम्मद ते हरफ ना आ जाए। कभी ये भी जज्बा रखा करो, मेरा नबी खुद तालीम दे रहे हैं। फरमाया अहिब्बुल अरब लिसलास, और लोगों, अरब के साथ, अहले अरब के साथ 3 वजह से मोहब्बत किया करो। इन्नी अरबियुन, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अरबी हूँ, इस वजह से उनसे मोहब्बत किया करो। नंबर 2, वलिसानु अहलिल जन्नति अरबियुन, और जन्नत में जो लोग होंगे उनकी जबान भी अरबी होगी। ठीक है, हदीस पूरी करो फिर बात समझाता हूँ। तीसरे नंबर पे फरमाया वलिसानुल कुरान अरबियन, और लोगों, अल्लाह का कुरान भी अरबी जबान में है। ठीक है, फरमाया लोगों, 3 वजह से अरब लोगों से मोहब्बत किया करो। मैं पैगंबर अरबी हूँ, जन्नत वालों की जबान अरबी है, और सुनो लोगों, अल्लाह का कुरान अरबी है, अल्लाह के इस कुरान की जबान भी अरबी है। अब तवज्जो करो, मैं जो मौजू बना रहा था आपको, अल्लाह पाक ने अपने कुरान की हिफाजत का कैसा बंदोबस्त किया कि जो जबान, जिस जबान में कुरान उतरना था, उसको सिर्फ क़यामत तक बाकी नहीं रखा, बल्कि जन्नत में भी वही जबान जारी कर दी। एडिया हिफाजता,
ایڈیاں حفاظتہ یری زبان قرآن اترے ہے، اس زبان دی حفاظتہ ہو گئیاں، کوئی چینج نہ کر سکا، اور اتنی بلیغ زبان ہے، بلیغ بلاغت سے بری ہوئی، اتنی بلیغ زبان ہے، یقین کرو ایک ایک لفظ کے کئی معنی بن جاتے ہیں، ایک ایک لفظ کے کئی معنی بن جاتے ہیں۔ جیسے ولی کا معنی دوست ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے ولی کا معنی وارث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولی کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے، یہ سارے ولی کے معنی میں آ جاتے ہیں، لفظ ایک ہی ہے ولی، واو لام یا، ولی، ٹھیک ہے۔ اتنی زبان اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی۔ بہرحال فرمایا لوگوں ہم نے اپنے قرآن کی حفاظت کا بندوبست کیا، اور کیسے کیا؟ توجہ ذرا خلاصہ دہرا لیں تاکہ جو ساتھی نئے آ رہے ہیں ان کو بھی یہ بات ساری ذہن میں آ جائے۔ قرآن کی حفاظت ہم نے خود اٹھائی ہے کہ قرآن کی حفاظت میں اللہ خود کروں گا۔ کیسے کی؟ فرمایا قرآن کو انسانیت کی تخلیق سے پہلے ہم نے لکھا، اور لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، جب آیا نمبر آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، پھر ہم نے کیا کیا؟ قرآن اتارنا چاہا تو سب سے بڑے فرشتے جبرائیل امین روح الامین کا انتخاب کیا، اس کے ذریعے سے اتروایا۔ جب اتارنے لگے تو سب سے اعلیٰ قسم کا دل میرے محمد کا دل تھا، ہم نے اس دل پہ اللہ اپنا قرآن اتارا، اور جب قرآن محمد کے دل پہ اتارا تو ہم نے اعلان کر دیا اللہ تو حرک بھی لسانہ کا، میرا پیغمبر اس بات میں جلدی نہ کر کہ قرآن کا کوئی جملہ یا آیت رہ نہ جائے، ساتھ نہ پڑا کر لا تو حرک بھی لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کر میرا پیغمبر۔ ان علینا جمعہ قرآن، اس قرآن کو تیرے دل میں محفوظ کر دینا، میں اللہ کے ذمہ آ گیا۔ پھر جب محفوظ ہو گیا، لوح محفوظ سے اٹھ کر آمنہ کے لال کے دل میں محفوظ ہو گیا۔ جب یہاں محفوظ ہوا، اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، ایک ایک لفظ کا معنی، ایک ایک آیت کی تشریح اور تفسیر میں اللہ آپ تمہیں سمجھا دوں گا۔ 1400 سال گزر گئے، تفسیروں میں تشریحوں میں لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوگی، لیکن قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا۔ لکھتا بھی ہے نا کوئی اپنی بات تو بین القوسین بریکٹوں کے درمیان اپنی بات لکھ دیتا ہے، ترجمے میں وہ تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب بھی وہ ترجمے میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، اللہ نے امت کے ایسے لوگ امت میں پیدا کر دی، وہ فوراً گرفت کر لیتے ہیں، خبردار یہ جملہ تو نے غلط لکھا ہے۔ اگر وہ دیدہ دانستہ لکھتا ہے اس کے خلاف فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا۔ بہرحال تو فرمایا قرآن کو ہم نے نبی کے دل میں تشریح اور توضیح اور تفسیر ہم نے خود ڈال دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جس زبان میں قرآن اترا اس قرآن کی زبان کو بھی ہم نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ اگلی بات، قرآن کی حفاظت کا ایک اور طریقہ بھی اللہ نے جاری کیا۔ کیا؟ جس شخصیت پر یعنی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اس شخصیت کی ساری کی ساری سیرت کو اللہ نے قیامت تک محفوظ کر دیا۔ سمجھ آئی؟ کسی نبی کی توجہ سے، کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی سیرت 100% دنیا میں محفوظ نہیں ہے سوائے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل وہ بھی محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اس کے علاوہ اپنے نبی کی باتیں محفوظ نہیں ہیں۔
यहूद के पास अपने अंबिया की बातें महफूज नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है, आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने ऐसी सीरत की हिफाजत की, आज तक अल्लाह के नबी की सिर्फ सीरत नहीं, नबी की अदाएं भी महफूज हैं। एक मौके पर आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को एक हदीस सुना रहे थे, यानी एक बात फरमा रहे थे जिसके अंदर गुनाह और तौबा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे। तवज्जो से सुनना जरा। गुनाह और तौबा के बारे में अपने सहाबा को मसला समझा रहे थे और फरमा रहे थे कि देखो जरा मेरी तरफ देखना, फरमा रहे थे कि ऐ सहाबा सुनो, जब कोई बंदा मोमिन होता है, ये जिस्म है, ये ईमान है, इस तरह उसके अंदर ईमान होता है। जब वो गुनाह करता है, ईमान उसकी जिस्म से निकल जाता है, सीने से निकल जाता है। फिर जब तौबा करता है, फिर ईमान इस तरह आके जुड़ जाता है। ये जो मैंने नकल की है, वजह से जरा देखो जरा मेरी बात, ये जो मैंने आपको नकल करके बताया है इशारे से, मोमिन बंदा ईमान ऐसे होते हैं, गुनाह होता है, ईमान निकल जाता है, फिर वो तौबा करता है, ईमान अंदर आके फिर बैठ जाता है। ये अंदाज उंगलियों में उंगलियां डालकर मेरे मोहम्मद ने करके दिखाया। ये अंदाज भी 1400 साल से आज तक महफूज है। हमारा नबी है, अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत के लिए नबी की अदाओं को भी महफूज कर दिया कि कोई बात नबी की नकल करने लगे तो उस वक़्त नबी की एक एक अदा उनके सामने हो, ताकि अल्लाह का कुरान महफूज रह सके। लोग कह सके जिस नबी की अदाएं इतनी महफूज है, उस नबी पर उतरने वाला कुरान कितना महफूज होगा। स्वीडन के बदमाशों को कुरान के औराक जलाने से क्या मिलेगा? जहन्नम का ईंधन बनेंगे। और क्या मिलेगा? अल्लाह की लानत और फटकार आएगी। और क्या मिलेगा? लेकिन मुसलमानों, असल बात यह है कि हमें झंझोड़ा जा रहा है कि मुसलमानों, ईमानी गैरत पैदा कर, कुरान से अपना राब्ता पैदा कर, कुरान के साथ निस्बत बना, वरना याद रख तेरी आंखों के सामने तेरे कुरान को शहीद किया गया, जलाया गया, तेरे नबी पर, तेरे नबी के नौजुबिल्लाह कार्टून बना के शय किए गए, लेकिन ईमान तेरा नहीं जागा, तेरा ज़मीर बेदार नहीं हुआ, तेरी गैरत नहीं जागी, फिर भी तू कुरान के और नबी के करीब नहीं आया। नतीजा देखता जा, आखिर नतीजा ये निकलेगा तू भी इसी तरह बर्बाद होके जला दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, ये अब होश करने का टाइम है, जागने का टाइम है। और मुसलमान कैसे जागे? सबसे अव्वलीन काम ये है, अल्लाह के कुरान के साथ उठना बैठना बना ले। भाई इसको मैंने समझना है, इस पर अमल करना है, इसको जिंदगी में लाना है, ताकि कुरान के औराक नऊज़ुबिल्लाह अगर दुश्मन जला दे तो मुसलमानों का जिस्म जीता जागता कुरान का मिसाली सबूत हो। जैसा कि हजरत आयशा से रजी अल्लाह ताला अन्हा से आकर एक सहाबी पूछते हैं, अम्मा जान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? हजरत आयशा फरमाती हैं, अलम तक़राइल कुरान, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? अम्मी जान, कुरान तो पढ़ा है। फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान, मेरे मोहम्मद के अखलाक पूछते हो, कुरान की एक एक आयत मेरे मोहम्मद के अखलाक की अक्कासी करती है। ऐसा बन जाओ। उलमा ने लिखा है, ये खामोश कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता हुआ कुरान है, ये लिखा हुआ कुरान है, वो चलता हुआ कुरान है, ये लिखा हुआ और जखीरा कुरान का है, ये इल्म कुरान का है और मोहम्मद अमल कुरान का है। ऐसा बन जाए मुसलमान, काफिर की क्या जुर्रत हो सकती है। लेकिन आज मुसलमाना, हमने खुद कुरान को छोड़ दिया, कुरान को हमने खुद रुला दिया। कुरान हमारी शोकेसों में, हमारे लॉकर्स में, हमारी अलमारियों में, हमारे कंसों पर पड़ा हुआ है और हमें फुर्सत नहीं होती कि कुरान खोल के तिलावत करें। मैं आपको ये कहता नहीं हूँ, सिर्फ थोड़ा सा बेदार कर रहा हूँ। सिर्फ हर बंदा अपने गिरबान में झांके, यार मैं जो मुसलमान हूँ, मेरे मजहब की किताब अल्लाह का कुरान है, आज सुबह मैंने उसके उठ के पढ़ा है, देखा है या नहीं देखा?
ہر بندہ اپنا فیصلہ کر لے آج کے دن کا، پھر پتہ چلے ہر بندے کو کہ میں اس کے ساتھ کیا وفا کر رہا ہوں۔ آج ہم خود ظالم ہوئے، ہم نے اللہ کے قرآن کی طرف التفات اور توجہ نہیں کی، کافروں کو یہ جرأت ہو گئی۔ آؤ ٹائم تھوڑا ہے، 5 منٹ رہ گئے۔ پائے استقامت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ خلیفہ مامون الرشید کے دور میں، توجہ سے بات سنو، قرآن کا نام لینا بڑا سوکھا ہے۔ ہم توحیدی ہیں، اشاعت و توحید والے ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، یہ نعرے مارنا بڑا سوکھا کام ہے۔ آؤ ذرا آ کر دیکھو، ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلے پہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ توجہ سے، مامون الرشید کو، خلیفہ مامون الرشید کو ایک معتزلی نے یہ ذہن بنایا اس بادشاہ کا کہ جناب یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ توجہ سے بات سنا، یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کا ذہن بنایا، اس کا ذہن بن گیا، اس نے آرڈر جاری کر دیا۔ یہ عباسیہ دور خلافت کے دور میں، بنو عباس کی خلافت ہے، اس کے دور میں مامون الرشید ایک بہت بڑا حاکم گزرا ہے۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا ہر جگہ پر کہ بھائی جتنے بھی گورنر ہیں وہ تمام کے تمام اپنے علاقے کے علماء کو بلائیں اور علماء سے یہ بات کہلوائیں کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ تو انہوں پتا بھائی اللہ کی مخلوق ہے قرآن؟ ہاں نہ نہیں کرنی، خبردار، ہاں نہ کی تھی تو پھنس ویسو، میں کراتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ سمجھ لو، مسئلے کا پتہ ہو تب بندہ ہاں نہ کرے، لیکن اتنا مجھے سمجھ آ گیا میں تو انہوں پتہ شدہ کوئی نہیں پتا۔ یہ قرآن کے جو حروف ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، قرآن کے جو الفاظ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مسئلہ سن لو، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس جلد کا نام قرآن نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھو، اس جلد کا نام قرآن نہیں ہے، اس کاغذ کا نام قرآن نہیں ہے، قرآن ہے اوپر الفاظ جو لکھے ہوئے ان کا نام قرآن ہے۔ اصل قرآن وہی ہے، چونکہ ان ورقوں پر، کاغذوں پر وہ جملے اور الفاظ اور آیتیں اور حروف لکھے ہوئے ہیں، اس لیے اس سارے کو قرآن بولا جاتا ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ اصل قرآن وہ الفاظ ہیں۔ جبرائیل آمنہ کے لال کے دل مبارک پر ورقے لے کے اترا تھا نہ، وہ الفاظ اور حروف، وہ آیات لے کے اترا تھا، وہی قرآن ہے، اس کا نقش یہاں پر موجود ہے۔ تو وہ جو الفاظ اور حروف ہیں، یاد رکھو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے پھر بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ جیڑا بندہ قرآن دی قسم چاہے، کیا وہ بندہ کفارہ دے گا یا نہیں دے گا، یا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ میرے خیال ہے کہ ایک دفعہ قسم دے موضوع تے پڑھایا جو میں تھے نہیں پڑھائے تھے، چلو انشاءاللہ زندگی، ہاں مجھے یاد پڑ گیا، مسجد میاں سلطان علی میں پڑھایا تھا صرف قسم کے موضوع پر۔ قسم کیا ہوتی ہے انشاءاللہ چوتھا جمعہ آ رہا ہے تو زندگی رہی تو اسی پہ پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ اچھا، قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے؟ تو یاد رکھو قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دیگر جتنے بھی علماء تھے، وقت کے گورنر نے ان کو بلایا، احمد بن حنبل کو بھی بغداد میں بلایا گیا، خلیفہ مامون الرشید کے سامنے ان کو بلایا گیا، بتایا گیا بھائی ہاں بھائی اس قرآن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اور اس نے مامون الرشید نے بڑا زور لگایا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ جیل میں بند کرا دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک بندے نے آ کے احمد بن حنبل کو جیل میں بتایا کہ جناب مامون الرشید تلوار لے کے اب میدان میں نکل رہا ہے کہ جو علماء قرآن کے اللہ کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں ہیں ان کو وہ خود قتل کرے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک گھٹنا زمین تے ٹیکا ہوا ہے، ایک گھٹنا
खड़ा किया होया है, अल्लाह के दरबार में दुआ करके कहते हैं मौला मैं तो तेरा अपना हाँ, तेरे कुरान वास्ते मैं डट गया, तू मेरी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। ऐसे अंदाज में दुआ की, रात के आखिरी पहर में बा ऐलान हो गया मामून उर रशीद मर चुका है। मामून उर रशीद मर गया, उसका उसके बाद जो वारिस बना वो मोतसिम नाम का एक बंदा हाकिम बना, मुसलमानों में खलीफा बना। वो वैसे भी मोतज़िली ज़हन का था, लंबी चौड़ी तफसील है। बहरहाल उसने फिर जो है और ज़्यादा जुल्म ढाना शुरू कर दिए। अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को एक दफ़ा अदालत में बुलाया गया, बादशाह के सामने बुलाया गया। रास्ते में आ रहे थे, तवज्जो से बात सुनना, रास्ते में आ रहे थे, एक देहाती बंदा रास्ते पे क्रॉस किया। उसने कहा एक बात अहमद बिन हंबल से करनी है। उसने फिर अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह से एक बात की, कहता है कि भाई इमाम साहब मैं एक देहाती बंदा हूं, लेकिन मेरी बात याद रख, मुसलमानों की नजरें तेरे ऊपर हैं, मुसलमानों का इस वक्त तू एक रहनुमा है, नजरें तेरे ऊपर है, और अगर तू फिसल गया तो मुसलमानों के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ख्याल करना, अपने पांव पे मजबूत खड़े होना। मौत आनी है, जहां से बच जाएगा तो फिर बच जाएगा हमेशा के लिए ना, आज बच जाएगा कल फिर मौत आ जाएगी। अपने पांव पे खड़े होना। एक तो ये बात थी। दूसरी बात इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं कि मेरे पास इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने एक खत भिजवाया था, वो खत मेरे पास जेल में पहुंचा। उस खत में लिखा हुआ था इमाम शाफी ने लिखा था अहमद इब्न हंबल को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में मिले हैं इमाम शाफी को, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अहमद इब्न हंबल को पैगाम भिजवाओ, मेरा सलाम भी कह देना, और उसे कह देना तेरे ऊपर एक कड़ी आजमाइश आ रही है, खबरदार अपने पांव पर डट के खड़े हो जाना, फिसल ना जाना। अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं फिर तो मेरे पास ऑप्शन ही कोई ना बचा। जब नबी की बात पैगाम आ गया फिर तो बात ही कोई ना बची। फिर फरमाते हैं कि मुझे ले जाया गया, चलते चलते 80 कोड़े मारे गए। 80 कोड़े है, 40-50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र का बंदा हो, 80 कोड़े उसे मारे जाए हर मोड़ पर। कहते हैं जब मुझे पहला कोड़ा लगा तो मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। जब मुझे दूसरा कोड़ा लगा तो मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब मुझे तीसरा कोड़ा लगा तो मैंने कहा कुरान अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। उनको फिर और जोश चढ़ता, वो और मारते, ये फिर कहता कुरान अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। मुसलमानों याद रखो, रहमानिया मस्जिद वालों, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत बड़े बड़े तरीकों से कराई है। कभी अल्लाह ने लोहे महफूज में रख कर कुरान की हिफाजत की, कभी जिब्राइल अमीन के जरिए हिफाजत की है, कभी अल्लाह ने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पाकीज़ा दिल उस पे कुरान उतार के कुरान की हिफाजत की है। फिर मोहम्मद की सीरत को अल्लाह ने महफूज करके कुरान की हिफाजत की है। अरबी जबान में कुरान था, अल्लाह ने अरबी जबान को महफूज करके कुरान की हिफाजत की है। और सुनो अल्लाह की ये तो इमाम अहमद इब्न हंबल था, अल्लाह की कसम है जो सहाबा कुरान के नाजिल होने के गवाह हैं, अल्लाह ने उनकी सीरतों को भी क़यामत तक महफूज कर दिया है। कुरान का मुहाफिज कौन है भाई? अल्लाह है। मुसलमानों पर जिम्मेदारी कुरान की हिफाजत की ये है कि मुसलमान कुरान पे अमल करे, कुरान को अपनाए, कुरान को जिंदगी में लाए। नहीं लाता तो कुरान मेरे भाइयों रोता रहता है। और कुरान क्या कहता है, छोटी सी चंद जुमले सुनो फिर दुआ करते हैं जी। वो एक आप मशहूर नज़म है कुरान की फरियाद, उसी से चंद शेर मैंने चुने हैं। तो चलो मौके की मुनासबत से अल्लाह करे कोई हमारा भी ज़मीर बेदार हो जाए, कुरान की फरियाद हमारे दिलों पर भी टक्कर मारे। क्या कहते हैं कुरान? ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, अलमारियों में सजा के रखा जाता हूँ, चूम चूम के आँखों पे लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया
इस्तेमाल ये कुछ रह गया है। तावीज़ बनो ते गले च पा लो, अपने बाजू नाल बन लो, नास के साथ बांध लो, फला कुरान को तावीज़ के लिए रख लिया या उसको घोल कर पानी पीने के लिए रख दिया। कुरान रो रो के कहता है तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम की बारी, कौलो कसम के लिए तकरार की बारी आती है। कौलो कसम, कसम अदालतों में कसम खाने का टाइम आ जाए, है कितने ही कसम चावनी पै जाए, सिर ते रखना पै जाए, उस वक्त के बारे में कुरान क्या कहता है? जब कौलो कसम के लिए तकरार की बारी आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। पूरा महीना प्यारा वे कुरान, औरत नहीं पढ़ती ते झगड़ा हो जाए घर दे अंदर, फट गई कुरान चाह के आ गई, मैनू कुरान दी कसम है। होता है ना ऐसे, मर्द भी ऐसा करते हैं, औरतें भी ऐसा करती हैं। कुरान क्या कहता है? जब कौलो कसम के लिए तकरार की बारी आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। और मुसलमानों की हालत क्या है उसके बारे में कुरान शिकवा करता हुआ नजर आता है। कुरान कहता है दिल सोज से खाली रहते हैं, दिलों के अंदर सोज कोई नहीं है, नरमी कोई नहीं, जो दिल कुरान सुन के रोमन लग वंजन। कुरान क्या कहता है? दिल सोज से खाली रहते हैं कि आंखें हैं कि नम होती नहीं। कुरान सुन के भी अखियां नहीं रोंदियां। हालत है ना साड़ी, असा दादे तरावियां वाला हाफिज ऐसा हो जरा अद्धे घंटे च सानू फ्री कर दे है। आंखें रो, कभी अरब का कुरान भी सुना करो है। टेलीविजन तो घर रखे हुए हैं ना आपने, एलसीडी एलईडी लगी हुई है, कनेक्शन भी लगे हुए हैं, कभी वो भी देखा करो वो कुरान कैसे पढ़ते हैं। मोबाइल पे यूट्यूब पे कभी ये भी बरोस किया करो, देखा करो कि यार अहले अरब कुरान कैसे पढ़ते हैं। यकीन करो धारे मार मार के, चीखे मार मार के वो रोते हैं। और हमारी क्या पोजीशन होती है? मौलवी साहब पढ़ रहा होता हमें पता ही नहीं होता पढ़ क्या रहा है, अल्लाह करे यार जल्दी जान छूटे यार, तरावियां मुका। हमारी ये पोजीशन है। कुरान क्या कहता है? दिल सोज से खाली है, आंखें हैं कि नम होती नहीं। कहने को तवज्जो, कहने को एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। कुरान कहता है कि भाई आखन नाल हर मजलिस तो पहले तिलावत कर लो। नेशनल असेंबली है, इजलास शुरू होने वाला है, कुरान की तिलावत शुरू हो रही है, हमारा कोई प्रोग्राम है, तिलावत शुरू हो रही है। कुरान क्या कहता है? कहने को मैं एक एक मजलिस में पढ़ पढ़ कर सुनाया जाता हूं। दो शेर हैं छोटे छोटे। नेकी पर बदी का गलबा, नेकी छुप गई बदी गालिब आई खड़ी है इस दौर में। नेकी पर बदी का गलबा, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। आज के दौर में सच्चाई ना लो धोखा होते गया, नेकी ना लो बुराई होते गई। नेकी से बदी का गलबा, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार एक किरई चाह के एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। कि नहीं जो चलस कुरान चाह के आयतां दो पढ़ लईस, कोई मर गयास तो पिछो थोड़ा जा 2-4 दिन कुरान पढ़ियास, वत उस तो बाद पूरी जिंदगी कुरान दी मुखालफत। कुरान क्या कहता है कि एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। अगला शेर सुन ते जरा गौर करना बात।
یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، بھئی سانو قرآن نال عقیدت محبت ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، نہ قرآن دا تے قانون واشنگٹن دا ہے، نہ قرآن دا قانون کالا، انگریز لارڈ بھی کالے کا، فرمایا قرآن کیا کہتا ہے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ میرے خیال ہے بس کر دئیے، بس اللہ کرے سانو قرآن دے بارے احساس پیدا ہو جائے۔ آج اگر دشمن ہمارے قرآن کو جلا رہا ہے تو وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن ہم بھی مجرم ہیں، ہم نے قرآن سے وفا نہیں کی۔ یہ قرآن نال وفا کرے اللہ اس تے ہر دور رحمتاں نازل کر دے، یہ قرآن دے نال بے وفائی کرے اللہ دی قسم اللہ ہر دور اس تے ناراض ہوندہ ہے تے لعنتاں کر دے۔ اللہ سانو رحمت دا مستحق بنائے۔